اپنے جوشیلے پن کی وجہ سے نوابوں کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ بس پھر نواب تو نوابزادیاں دکھائیں ہی دکھائیں گے۔ نوروز کو جب بلائیں گے کہ تم نے اکیلے آنا ہے گھر پہ، تو وہ اکیلے ان کے درمیان پہنچ جائے گا، اور پھر نوروز کو جب نواب کہے گا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ زمین پر بیٹھ جائے گا۔ نواب بھی مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہے گا، دیکھو آج بھی اس کے اندر وفاداری ہے، یہ میرے کہنے پر کیسے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے کہے گا کہ میرے بیٹے کی جان بچانے کی قیمت مانگو۔ نواب بتائے گا کہ دنیا پور تمہیں چھوڑنا ہوگا، وہ تو پہلے ہی تہیا کر کے آیا تھا، اگر وہ مجھ سے دنیا پور مانگیں گے تو میں آسانی سے دنیا پور ان کو دے دوں گا، اور جب وہ واپس جانے لگے گا کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گا، تو نواب کھڑا ہو کر اس سے اور انتہائی قیمتی چیز مانگے گا، یعنی اس سے کہے گا کہ تمہاری چھوٹی بیٹی، جو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ جوان ہو چکی ہے، اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ اور یہ سن کر نوروز تو جیسے غصے میں اور طیش میں آ کر نواب پر ہاتھ اٹھانے لگ جائے گا۔ نوروز کے تو جیسے ہوش اڑ جائیں گے، اور جب وہ واپس آئے گا تو اپنی ماں کو فیصلہ سنائے گا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اگر میرا بیٹا نایاب زندہ واپس آئے گا تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ دنیا پور بھی ان کو دینا پڑے گا، اور ساتھ میں میری اپنی بیٹی بھی اس نواب کے نکاح میں دینی ہوگی۔ نوروز کی بیوی یہ بات سن کر بہت زیادہ صدمے میں آ جائے گی کہ میری بیٹی کا نکاح ایک بڈھے کے ساتھ، اور وہ بیچاری بغیر کوئی مشورہ دیے وہاں سے چلی جائے گی، اور جب اپنے بیٹے شامیر کے پاس جائے گی تو شامیر پوچھے گا کہ کیا فیصلہ ہوا، بابا نے تو ان کے پاس جانا ہی تھا، کیا وہ نایاب کو لے کر آئے ہیں؟ اس پر اس کی ماں بتائے گی کہ بالکل بھی نہیں، نایاب تو گھر واپس نہیں آیا، ہاں تمہارا باپ 2 شرطوں کے ساتھ واپس آیا ہے، اگر شرطیں پوری نہ کی گئی تو نایاب کی لاش ہمارے گھر کی طرف بھیج دیں گے، اور اگر شرطیں پوری ہو گئی تو نایاب آئے گا۔ جب وہ پوچھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی بہن کا نکاح بھی نواب کے ساتھ ہوگا۔ شامیر تو جیسے صدمے میں آ جاتا ہے اور پریشان بھی کہ ہماری چھوٹی اور لاڈلی بہن کا نکاح، وہ بھی ایک 70 سال کے بوڑھے کے ساتھ، یہ ممکن نہیں ہے۔ نایاب کو چھڑوانا بہت ضروری ہے، ہم سب جا کر بڑی ہی قوت کے ساتھ اپنے بھائی کو چھڑوائیں گے۔ اس کی ماں اسے سمجھا دیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا۔ وہ غصے سے ہاسپٹل سے سیدھا اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور کسی کی بات نہیں مانتا کہ میری بہن کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نوروز سوچ و وچار میں گم ہو جاتا ہے۔ نواب کی بیوی ہی نایاب کے چچا کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور جو حملہ نایاب پر ہوتا ہے وہ بھی اسی کی ملی بھگت ہوتی ہے، یعنی نایاب کا چچا وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے پلان میں ضرور کامیاب ہوں گا، نوروز اس دنیا سے ضرور جائے گا، اور اس کے بیٹے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور دنیا پور پر میں حکومت کروں گا۔ ہر کوئی دنیا پور پر اپنی حکومت اور بادشاہ چاہتا ہے، اس لیے جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ایک دوسرے کو چیٹ پھاڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ نوروز جسے دنیا پور پر حکومت نہیں کرنی، لیکن لوگ اسے بہت چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اور نواب وہ انتہائی ظلم اور جابر کا بادشاہ ہوتا ہے، اسے کوئی بھی لوگ پسند نہیں کرتے۔ نوروز اور اس کا باپ بھی اسی نواب کے غلام ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے تو وہاں سے اپنی جان چھڑا کر آدھی دنیا پور پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بس یہی چاہتا ہے نواب کہ دنیا پور بھی واپس آ جائے، اور اس کی بیٹی بھی میرے نکاح میں آ جائے۔ اس طرح نوروز نہ تو مجھ پر حملہ کرے گا اور نہ ہی کبھی دنیا پور مجھ سے چھین لے گا۔ نواب کی بیوی جب سنے گی کہ نواب نوروز کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو وہ غصے میں آ جائے گی کہ نکاح پہ نکاح، کیا ہو گیا اس بوڑھے کو۔ وہ نایاب کے چچا کو فون کر کے اسے دھمکائے گی کہ تم نے ہر صورت میں یہ نکاح رکوانا ہے۔ نوروز کو بھڑکاؤ کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ نواب کے ساتھ بالکل بھی نہ کرے۔ تمہاری ہر سازش میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، اور آج تمہیں ضرورت ہے میرا ساتھ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں سب کو بتا دوں گی کہ نایاب پر جو حملہ ہوا وہ تمہارے کہنے پر ہوا ہے اور تمہارے بتانے پر ہوا ہے، تو پھر تمہارا پھانڈا پھوٹ جائے گا۔ نایاب کا چچا جو بہت بڑی گیم کھیل جائے گا، تو دوسری طرف جب اس لڑکی کو پتہ چلے گا کہ اس کا نکاح نواب کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ اپنی ماں کو غصے سے کہنے لگ جائے گی کہ اگر میرا نکاح اس بڈھے کے ساتھ ہوا تو اس سے پہلے میں زہر کھا لوں گی، میں ہرگز اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، اور مجھ پر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسی لڑکے سے ملنے کے لیے چلی جائے گی، یعنی اپنے وفادار غلام کے بیٹے کے ساتھ۔ پھر اسی دوران نایاب کا چچا جو اچھی طریقے سے جانتا ہوگا کہ اس لڑکی کا غلام کے بیٹے کے ساتھ چکر ہے، تو وہ اسے پکڑ لے گا، اور جب اس کو نوروز کے سامنے لایا جائے گا تو وہ روتی رہے گی، اور سبھی اسی لڑکے کو مارنے لگ جائیں گے۔ وہ اپنے باپ سے کہے گی کہ اس لڑکی کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، یہ تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتا، بلکہ میں سے محبت کرتی ہوں، اور میں نے اس کو اکسایا ورگلایا، اس کو جانے دی، اسے چھوڑ دیں۔ نایاب کا چچا جو اچھے سے جانتا ہے کہ کام خراب کرنا ہے اور پھر ان سب کو مروانا ہے، اور میں نے ہی دنیا پور پر راج کرنا ہے، وہ گولی چلا دے گا اس لڑکے کو اور مار دے گا۔ اور نوروز کا وفادار آدمی جب آئے گا، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے مرا ہوا دیکھے گا، تو اس کے تو جیسے ہوش اڑ جائیں گے، اپنے جوان بیٹی کی لاش اٹھا کر وہاں سے خاموشی سے چلا جائے گا اور کسی سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ نوروز جو بہت ہی پریشان ہوگا کہ ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی مل رہی ہے، اور ایک ایسا وفادار آدمی میرا جس کا بیٹا میری بیٹی کی وجہ سے مارا جا چکا ہے، وہ اپنے بھائی پر غصہ کرے گا کہ گولی چلانے کی کیا ضرورت تھی، دنیا پور کے فیصلے میں کرتا ہوں، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اس لڑکے کو گولی مارنے کی۔ اس کی بیٹی
وہ تو جیسے پاگل ہو جائے گی اور نوروز بھی فیصلہ کر لے گا کہ اپنی اس بیٹی کا نکاح نواب کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح نایاب بھی آزاد ہو کر آ جائے گا، اور نایاب کو جب پتہ چلے گا کہ میری چھوٹی بہن کا نکاح نواب کے ساتھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ میری جان بخش دیں گے، تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگ جائے گا اور پھر نواب کے بیٹے سے کہے گا کہ ہمت ہے تو میرے ساتھ جنگ کرو، مجھے رہا کر کے میرے ساتھ لڑائی کرو، پھر دیکھو کون جیتتا ہے اور کون مرتا ہے۔ اس طریقے سے شرطیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نایاب جو بالکل نہیں جان پائے گا کہ یہ ساری گیم صرف اور صرف ہمارے چچا کی ہے، کیونکہ وہ ہم سب کو مروانا چاہتا ہے اور دنیا پور پر راج کرنا چاہتا ہے۔ دنیا پور پر راج کرنا ہے، جیسے بھی کیسے بھی مروا کر بھی صرف اور صرف بادشاہ چاہیے۔ یہ ڈرامہ بہت ہی خوبصورت انداز سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھنے کے دوران آپ کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں لگے گا کہ آپ پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کو فل اینڈ فائنل یہی محسوس ہوگا کہ آپ مووی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہالی ووڈ کی۔ زبردست اور کمال کا یہ ڈرامہ ہے جو گرین ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھیے، اپنی رائے دیجیے اور ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کو بیٹی کی شادی باپ کرائے گا، بیٹا اپنی شادی خود کرائے گا۔ لیکن یہاں پہ لوگ بیٹوں کی شادی بھی باپ کرواتے ہیں اور بیٹیوں کا بھی کرواتے ہیں۔ اس سینس میں آپ کیا کہیں گے؟ بیٹی کو اگر جہیز دیا ہے، جہیز ایک ہدیہ ہے۔ جیسے کہ آپ اپنے بیٹے کو اگر کوئی چیز گفٹ دیتے ہیں، چاہے وہ گاڑی ہے، وہ لڑکے موٹر سائیکل چلاتے ہیں موسٹلی اپنے لیے وہ لیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز، تو وہ گفٹ ہے۔ اب جہیز اگر آپ نے دیا ہے تو وہ گفٹ ہے، وہ اس کی جائیداد میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور اگر جائیداد کے ٹائم پہ وہ تو پھر میں نے نایاب اپنے جوشیلے پن کی وجہ سے نوابوں کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ بس پھر نواب تو نوابزادیاں دکھائیں گے، نوروز کو جب بلائیں گے کہ تم نے اکیلے آنا ہے گھر پہ، تو وہ اکیلے ان کے درمیان پہنچ جائے گا، اور پھر نوروز کو جب نواب کہے گا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ زمین پر بیٹھ جائے گا۔ نواب بھی مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہے گا، دیکھو آج بھی اس کے اندر وفاداری ہے، یہ میرے کہنے پر کیسے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اس سے کہے گا کہ میرے بیٹے کی جان بچانے کی قیمت مانگو۔ نواب بتائے گا کہ دنیا پور تمہیں چھوڑنا ہوگا، وہ تو پہلے ہی تیار کر کے آیا تھا، اگر وہ مجھ سے دنیا پور مانگیں گے تو میں آسانی سے دنیا پور ان کو دے دوں گا، اور جب واپس جانے لگے گا کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گا، تو نواب کھڑا ہو کر اس سے اور انتہائی قیمتی چیز مانگے گا، یعنی اس سے کہے گا کہ تمہاری چھوٹی بیٹی، جو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جوان ہو چکی ہے، اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ اور یہ سن کر نوروز تو جیسے غصے میں اور طیش میں آ کر نواب پر ہاتھ اٹھانے لگ جائے گا۔ نوروز کے تو جیسے ہوش اڑ جائیں گے، اور جب وہ واپس آئے گا تو اپنی ماں کو ہی فیصلہ سنائے گا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اگر میرا بیٹا نایاب زندہ واپس آئے گا تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ دنیا پور بھی ان کو دینا پڑے گا، اور ساتھ میں میری اپنی بیٹی بھی اس نواب کے نکاح میں دینی ہوگی۔ نوروز کی بیوی یہ بات سن کر بہت زیادہ صدمے میں آ جائے گی کہ میری بیٹی کا نکاح ایک بوڑھے کے ساتھ، اور وہ بیچاری بغیر کوئی مشورہ دیے وہاں سے چلی جائے گی، اور جب اپنے بیٹے شاہ کے پاس جائے گی تو شاہ پوچھے گا کہ کیا فیصلہ ہوا، بابا نے تو ان کے پاس جانا ہی تھا، کیا وہ نایاب کو لے کر آئے ہیں؟ اس پر اس کی ماں بتائے گی کہ بالکل بھی نہیں، نایاب تو گھر واپس نہیں آیا، ہاں تمہارا باپ 2 شرطوں کے ساتھ واپس آیا ہے، اگر شرطیں پوری نہ کی گئی تو نایاب کی لاش ہمارے گھر کی طرف بھیج دیں گے، اور اگر شرطیں پوری ہو گئی تو نایاب آئے گا۔ جب وہ پوچھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی بہن کا نکاح بھی نواب کے ساتھ ہوگا۔ شاہ میر تو جیسے صدمے میں آ جاتا ہے اور پریشان بھی کہ ہماری چھوٹی اور لاڈلی بہن کا نکاح وہ بھی ایک 70 سال کے بوڑھے کے ساتھ، یہ ممکن نہیں ہے، نایاب کو چھڑوانا بہت ضروری ہے، ہم سب جا کر بڑی ہی قوت کے ساتھ اپنے بھائی کو چھڑوائیں گے۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، وہ غصے سے ہاسپٹل سے سیدھا اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور کسی کی بات نہیں مانتا کہ میری بہن کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نوروز سوچ وچار میں گم ہو جاتا ہے۔ نواب کی بیوی ہی نایاب کے چچا کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور جو حملہ نایاب پر ہوتا ہے وہ بھی اسی کی ملی بھگت ہوتی ہے، یعنی نایاب کا چچا وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے پلان میں ضرور کامیاب ہوں گا، نوروز اس دنیا سے ضرور جائے گا، اور اس کے بیٹے بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور دنیا پور پر میں حکومت کروں گا۔ ہر کوئی دنیا پور پر اپنی حکومت اور بادشاہ چاہتا ہے، اسی لیے جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ایک دوسرے کو چیٹ پھاڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ نوروز جسے دنیا پور پر حکومت نہیں کرنی، لیکن لوگ اسے بہت چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ دوسرے کو خیال رکھتا ہے، اور نواب وہ انتہائی ظلم اور جابر کا بادشاہ ہوتا ہے، اسے کوئی بھی لوگ پسند نہیں کرتے۔ نوروز اور اس کا باپ بھی اسی نواب کے غلام ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے تو وہاں سے اپنی جان چھڑا کر آدھی دنیا پور پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بس یہی چاہتا ہے نواب کہ دنیا پور بھی واپس آ جائے اور اس کی بیٹی بھی میری نکاح میں آ جائے۔ اس طرح نوروز نہ تو مجھ پر حملہ کرے گا اور نہ ہی کبھی دنیا پور مجھ سے چھیننے گا۔ نواب کی بیوی جب سنے گی کہ نواب
नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो वो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है। तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सब उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं से मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उठ जाएंगे। अपने जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बच देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरी बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बूढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है, अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है, हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता।
नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा, नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसीलिए जिसको जहां मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो वो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सब उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपने जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है, वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बच देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि
दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बूढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है। अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है। हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है, और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे पहुंचाते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़े के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा, और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सभी उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपनी जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है जैसे भी कैसे भी, मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।
नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा। और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा। और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बुढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है, अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल की बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है, हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा, नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सभी उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपने जवान बेटे की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी
वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो करीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। की चीज़ें नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब पे नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे, तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ, तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बूढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है, अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है, हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा, नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसीलिए जिसको जहां मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती
जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है, तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सब उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता, बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा, अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपने जवान बेटे की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरे बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। बेटी की